Hello everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture we will discuss solution of aromatic compound, and previously we have solved up to question 120. Now in this lecture we will do from question 121 onwards. Before starting video, I would like to request all of you, please subscribe my channel for more video updates. Okay, so let's start with the problem 121. Okay, see carefully. It is given that when this compound treated with C6H6 means benzene in presence of AlCl3, it gives A. When A further treated with PCl5 followed with H2PDBSO4, it gives B, and B further treated with hydrogen, it gives C. Then we have to identify compound C. See carefully how would you proceed. C. This one is the structure of the compound. Okay, first of all write down the structure. This one is the benzene ring, carbonyl group. It's a anhydride. Okay, when this compound treated with AlCl3, AlCl3 generate an electrophile, because AlCl3 is a Lewis acid and all the Lewis acid having tendency to produce electrophile. Therefore, see carefully. AlCl3 will attack at that position where electron density maximum. Now this compound having 3 oxygen atom. Okay, see carefully. This oxygen atom having 2 lone pairs, this oxygen atom also having 2 lone pairs. But this lone pair delocalizes. Due to delocalization of electron, electron density on this oxygen atom decreases. Therefore this AlCl3, first of all AlCl3 attack at this double bonded oxygen, because this oxygen is not delocalized. This one is the localized electron, and this oxygen having delocalized electron. Therefore electron density on this oxygen atom decreases and this oxygen atom remains same. Therefore AlCl3 is an electron deficient species and it attacks at that position where electron density is maximum. तो पहले ये जाके इस पे अटैक करेगा. Then after that, see what will happen. Okay, see further what will happen. Okay, this bond will break like this and it produces a carbocation. This carbon bears slightly positive charge और ये जाके इस पे अटैक कर देगा. See carefully. Okay, ये इस पे this carbon having positive charge, this one having negative charge, means it will attack at this position. And simply what I want to say, it will give Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, I am writing the mechanism. तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, a bond form between this carbon atom and this carbonyl group. Okay, is it all right? And this carbon atom having positive charge, जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा ब्रेक होगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा. ये माइनस और प्लस में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा. एंड फाइनली देखो ये बॉन्ड एज इट इज रहा. देखो दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल नॉट डिस्टर्ब, ये एज इट इज रहा होगा. और ये जो है ये जाके कार्बोनिल ग्रुप पे स्टिक हो जाएगा टू प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोफाइल एंड फिर अपने फॉर्म में वापस आएगा. तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा. तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा यहां से ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और ये देखो सी डबल बॉन्ड हो. ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो देखो क्या बनेगा, ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहा होगा COO माइनस. अब देखो ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, ये हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए निकलेगा एंड फाइनली H प्लस के फॉर्म में निकलेगा. देखो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, दिस हाइड्रोजन रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ H प्लस और ये जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो देखो इसको हम क्या लिखें, ये देखो बेंजीन रिंग बना दो, CO और ये एक बेंजीन रिंग और है. ठीक है बेटे, और यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, COH है. ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कौन सा, A. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया A.
फर्दर कह रहा है PCl5 के साथ रिएक्शन किया, फिर H2PdBSO4, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं H2PdBSO4 को। तो देखो सबसे पहले ये PCl5 के साथ रिएक्शन किया, जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो देखो इसको मैं पीएच लिख लेता हूं, PHCO, और ये देखो ये से जुड़ गया, सी केयरफुली, ये बेंजीन रिंग है, ये बन जाएगा COCl, ठीक है। फर्दर इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, H2PdBSO4, Lindeler's catalyst, H2PdBSO4, that is known as the Lindeler's catalyst। ये असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इसको हम पूरे को बोलते हैं Lindeler's catalyst। आई थिंक सबको पता होगा, दिस इज कॉल्ड Lindeler's catalyst, ओके। ये पूरा मिक्सर को हम बोलते हैं Lindeler's catalyst, इज इट ऑल राइट। और ये क्या करता है, COCl को CHO में कन्वर्ट करता है, तो ये बनेगा PHCO, यहाँ पे देखो एक बेंजीन रिंग जुड़ा है, एंड दिस ऑर्थो पोजीशन विल हैव CHO, ओके। फर्दर ये कह रहा है कि ये किससे रिएक्ट किया, लेट मी सी, हाइड्रोजीन NH2NH2, सी केयरफुली कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये फर्दर NH2NH2 से रिएक्ट किया। तो देखो ये NH2NH2 से रिएक्ट करेगा, तो देखो इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे लिख रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आए, देखो, और ये NH2NH2 से रिएक्शन करेगा, NH2NH2, इट्स अ हाइड्रोजीन, इज इट ऑल राइट। देन यहां से देखो H2O निकलेगा, यहां से भी H2O निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, बट यहाँ पे दो NH2 ग्रुप है, एंड वी नो दैट व्हेन एनी C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कीटो ग्रुप treated with ZNH2 type group, then water releases and it forms C double bond NZ, imine, that is nothing but imine, you have to keep in mind, please memorize it, okay okay well now अब देखो ये जब H2O निकल जाएगा then what will happen further, तो ये बस हमारा प्रोडक्ट बन गया फाइनल, this one is our final product, ठीक है। ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहा, ये देखो CH डबल बॉन्ड N, फिर C एक PH आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और ये, ठीक है। दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, सी केयरफुली, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। इज इट ऑल राइट, 121 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। लेट्स डू क्वेश्चन 122। इन क्वेश्चन 122 1,3-dihydroxybenzene, yeah, simply you can say 3-hydroxyphenol when treated with the NaCO3 boil and in followed by hydrolysis H3O plus, it gives a measure, ठीक है। तो देखो बेटा, simply you have to keep in mind, जब NaCO3 को जब बॉयल करते हैं ना, जब बॉयल करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। 2NaCO3 को जब हम बॉयल करेंगे तो ये निकलेगा Na2CO3 plus H2O plus CO2, सिंपली ये कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फर्दर ये जब फर्दर रिलीज होगा, मतलब हीट करेंगे तो वो भी CO2 गैस निकलेगा। इन सिंपली वी हैव टू मेमोराइज व्हेन वी हीट NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देन CO2 गैस रिलीजेस, ओके। तो अब ये देखो, ये कोल्बे स्मिट रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी भी फिनोल को, व्हेन एनी फिनोल ट्रीटेड विद CO2 followed by hydrolysis then it gives salicylic acid, ओके। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा, सी केयरफुली। यहाँ पे देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये आपका फिनोल है OH, और यहाँ पे भी देखो एक OH ग्रुप लगा है, ये CO2 से रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये देखो, या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, इस OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, ये ऑर्थो पोजीशन है, या तो ये ऑर्थो पोजीशन है। अब जरा सोचो, अगर यहाँ पे आएगा तो दोनों, मतलब COH ग्रुप यहाँ पे आएगा तो तीनों लगातार होंगे, तो लगातार का मतलब हिंड्रेंस बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी, बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, तो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए जो है ये जो CO2 है ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो जब इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये वाला इसको अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, है ना। अब देखो आई रिपीट अगेन, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आते ही ये हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके चलते क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा और वहां पे अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, CO और O पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है बेटे। एंड फर्दर हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये OH रहा हमारा, ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा COH, ठीक है। तो C in which option it is given? It is given in option B, ठीक है। Okay, let's do question 123. See in question 123 कह रहा है कि ये कंपाउंड आइडेंटिफाई पोजीशन वेयर अटैक ऑफ ARO माइनस। ARO माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी सिंपली हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगी हैपन तो किस पोजीशन पे होगी, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा या 4 पे होगा। तो अब देखो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव डजंट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट गिव्स ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इन सम रेयर केसेस इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो। कौन कौन से केस होते हैं, पहला होता है विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, और दूसरा देता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा होता है व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो अगर मान लो यहाँ पे Cl है और इसके ऑर्थो पे या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -m टाइप के ग्रुप, देखो ये NO2 के पास कैसा इफेक्ट होता है, तो बोलेंगे -m इफेक्ट होता है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराएं OH- से तो Cl निकलेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये हमें याद रखना है बेटे, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि when benzene or its derivative gives nucleophilic substitution reaction तो बोलेंगे when any electron withdrawing group that is to say -m effect जिसमें होगा like NO2 CHO COH attach at ortho and para position with respect to living group that is to say Cl, इस केस में Cl है, ठीक है ना। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं अभी कर रहा हूँ, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। Then nucleophilic substitution reaction takes place. अब देखो ये I+ is a weak base that is a good living group, I+ is a weak base that is a good living group, और NO2 किसके पोजीशन पे, देखो पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है, ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और स्टिक करा देंगे तो Cl के निकलने का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस NO2 हैविंग -m इफेक्ट, और इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे ARO- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि देखो I+ इज ए वीक बेस, ये निकलेगा, और ARO- कहाँ पे अटैक करेगा, थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा। सेकंड पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये मेटा पोजीशन, दिस वन इज मेटा, ठीक है, तो यहाँ पे तो जा नहीं सकता, ठीक है। ऑर्थो पे भी जा सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं अटैक करेगा, I+ निकलेगा, I+ एक गुड लिविंग ग्रुप पे निकलेगा तो फोर्थ पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। जब फोर्थ पोजीशन पे जाके अटैक करेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी थर्ड पोजीशन, नॉट फोर्थ, दिस वन इज थर्ड पोजीशन, सी केयरफुली, दिस पोजीशन इज थर्ड पोजीशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो बस याद रख लेना कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब कब होता है, कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा। अब रही बात, देखो 1 पे भी जा सकता था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 1 पे क्यों नहीं गया, 1 पे भी तो जा सकता है, ठीक है, तो 1 पे भी जा सकता है नो डाउट, बट 1 पे लिविंग ग्रुप थोड़े है, 1 पे अगर लिविंग ग्रुप रहेगा तो आसानी से लीव करेगा, वहां पे उस पोजीशन पे आके अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। When benzene or its derivative gives nucleophilic substitution reaction, तो मैं कई बार इसी एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस किया हूँ, एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा बताया था व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 124। 124 कह रहा है कि ये कंपाउंड को Cl2 से रिएक्ट करेंगे, तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी आवर प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट A क्या होगा, ओके। इट्स ए इजी क्वेश्चन, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ वी हैव टू प्रोसीड। दिस वन इज अ बेंजीन रिंग, ये दो सल्फर आपस में अटैच हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, NO2 ये इसके ऑर्थो पे, इसके भी ऑर्थो पे NO2 ग्रुप है। अब देखो क्या होगा, Cl Cl, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सल्फर पे जो लोन पेयर है वो इसको अप्रोच करेगा और ये Cl निकलेगा यहाँ से। और देखो यहाँ पे हीट का भी सिंबल देना चाहिए, ठीक है ना, ये हीट करेंगे तभी ये बॉन्ड फिजिबल होगा, कमजोर होगा, ब्रेक होगा, एंड कार्बोकेटायन जनरेट होगा, ये इस पे बनेगा। तो देखो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एक Cl- ये निकल गया, देखो ये Cl किस फॉर्म में निकलेगा, तो बोलेंगे Cl- के फॉर्म में। इस Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, इस Cl पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये सल्फर पे जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो सी केयरफुली क्या बनाया है,
तो ये तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। S, अब देखो S जुड़ गया किससे, Cl से, और S पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज ये सल्फर का एक लोन पेयर इसके साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जुड़ा है किससे, एक बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग यहाँ पे NO2 एज इट इज है वो लगा दो, यहाँ पे भी NO2 था वो लगा दो, ठीक है। अब देखो फर्दर व्हाट विल हैपन, Cl माइनस तो सिस्टम में पड़ा ही है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब देखो इस कार्बन पे इस सल्फर पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो बेटा मैं कई बार बता चुका हूं, एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, टेल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ड्यू टू कॉज ऑफ दिस एरो दिस सल्फर वी आर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl माइनस जाके इस पे अटैक कर देगा। तो देखो दो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस सल्फर से Cl जुड़ गया और इस सल्फर से Cl जुड़ा है, यानी दो मॉलिक्यूल्स डिट्टो बनेंगे, सेम बनेंगे, ठीक है ना, 2 मोल्स। यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, SCl, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो NO2 HCl B। सी इन क्वेश्चन 125, ठीक है। When this compound treated with HNO3 in presence of H2SO4, यानी हम इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो A प्रोडक्ट बनेगा। A को हमने ZnHg HCl के साथ यानी क्लेमेंसन रिडक्शन करा है, तो B बना। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि B क्या है। तो सी केयरफुली, दिस वन हैविंग माइनस M इफेक्ट, ठीक है, इसके पास कौन सा इफेक्ट है, माइनस M इफेक्ट, यानी मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग के चलते अब देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है, COCS3 एक माइनस M इफेक्ट है। जब हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, और ये कहां चला जाएगा, मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, यानी COCS3 के रिस्पेक्ट में कहां चला जाएगा, मेटा पे। यहां मान लो तुम्हारा है COCS3, सी केयरफुली, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या चला गया, NO2 चला गया। एंड फर्दर हमने इसका क्या कराना है, रिडक्शन, ZnHgHCl के साथ इसका रिडक्शन कराना है। तो देखो दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये NO2 ग्रुप को NH2 में करेगा और CO को किस में करेगा, CH2 में। याद कर लेना है बेटा नोट करके कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको ZnHg और HCl के साथ जब रिड्यूस करते हैं तो ये CH2 में जाता है, और NO2 को, सी केयरफुली, NO2 ग्रुप को अगर हम ZnHg और HCl से रिड्यूस करते हैं तो ये NH2 ग्रुप में चला जाता है। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है बेटा। तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये एज इट इज रहा होगा, यहाँ पे देखो NH2 आ जाएगा, ठीक है, और इस वाले से क्या जुड़ेगा, ये देखो CO किस में चला जाएगा, CH2 में, तो CH2 CH3 यानी CH2Me और NH2। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, B, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 126। सी इन क्वेश्चन 126 कह रहा है दिस Me मतलब मिथाइल, दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद NH डबल बॉन्ड CHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट गिव्स A, एंड फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये B दे रहा है, तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट B क्या रहा होगा। तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं, ठीक है, सी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल AlCl3 एक लिविस एसिड है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। तो देखो ये Cl को लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस आएगा। देखो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज हो और उसके नेबरिंग एटम पे लोन पेयर हो तो वो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करता है, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इस टाइप का हो जाएगा, है ना बेटा। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा मिथाइल है, Me मतलब मिथाइल होता है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये माइंड में रखना, ठीक है। ये अटैक करेगा किसके साथ, NH डबल बॉन्ड CHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो जब AlCl3 इसके साथ जब अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा NH डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, और ये कहां चला जाएगा, या तो इस पोजीशन पे जाएगा ऑर्थो पे, सी केयरफुली, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। तो इसमें कह रहा है सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ये इस पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटे, तो सी केयरफुली, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इज इट ऑल राइट। अब देखो बेटा, अब इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है H प्लस NOH माइनस का एडिशन, नथिंग एल्स। H3O प्लस का सिंपल मीनिंग क्या है, H प्लस NOH माइनस का एडिशन। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा। देखो इस कार्बन पे OH आएगा क्योंकि इस पे प्लस आएगा, इस पे H आएगा,
ठीक है, 2 बार बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, एक बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे फिर दोबारा जब ब्रेक होगा अगेन इस पे OH आएगा और इस पे NH, तो ये NH3 के फॉर्म में निकल गया और इस पे देखो इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाएगा। तो when 2 OH group attach with the same carbon atom then H2O releases, because जो जेम डायल होता है हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखो इस पे आ गया CH OH OH and plus NH3, ठीक है बेटा। तो देखो when 2 OH group attach with the same carbon atom then H2O releases, और जब H2O रिलीज होगा then what will happen, see carefully, जब H2O यहाँ से रिलीज होगा तो इसका देखो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो CH3 तो रहेगा ही, इट विल नॉट चेंज, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन बी CH3CHO। C in question 127, when this compound treated with ETOH अल्कोहल है और ये क्या है एसिड है, तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। सी केयरफुली, दिस वन इज अल्कोहल एसिड एंड दिस वन इज अल्कोहल फॉलोड बाई H+, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। सी सॉल्यूशन, हाउ डू यू प्रोसीड। देखो यहाँ पे 2 बेंजीन जुड़ा हुआ है 1 2 और यहाँ पे है CH2COOH, ठीक है, और इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, C2H5OH के साथ, CH3CH2OH in presence of H+। तो देखो एस्टरिफिकेशन में OH कम्स फ्रॉम एसिड एंड H कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ये माइंड में रखना है। H कहाँ से आता है, H कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड OH कम्स फ्रॉम एसिड, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट H+ के प्रेजेंस में क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ H+, मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बेंजीनिंग एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, नेप्थलीन टाइप का बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे लगा हुआ है CH2COOC2H5 यानी CH2CH3, ये एस्टर बन गया, ठीक है बेटा। अब देखो एस्टर तो बन गया, अब यहां से क्या होगा, यहां से NaH आएगा, NaH, क्लियर। तो अब जरा सोचो, NaH एक बेस है एंड बेस का भोजन क्या है, बेस किसको खाता है, प्रोटॉन को खाता है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो अब देखो X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, यहाँ ट्रिक देखो, X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है दैट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यस। तो देखो सी केयरफुली, X डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, यहाँ देखो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये NH एक हाइड्रोजन को यहाँ से खा जाएगा, ठीक है। तो देखो अब तुम ऐसे इस हाइड्रोजन को तुम बेटा ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इस हाइड्रोजन को ऐसे ले लो, ये हाइड्रोजन निकलेगा, इसे कौन निकाल रहा है इस हाइड्रोजन को, तो बोलेंगे ये बेस निकाल रहा है, ये तो ये प्रोडक्ट बना देगा। देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आ गया CH पे एक माइनस चार्ज आएगा, ये बनेगा COOC2H5, ठीक है, ये बन गया। अब देखो फर्दर कह रहा है कि ये MEI से रिएक्शन किया, मिथाइल आयोडाइड, और ये रिएक्शन किया किसके साथ, CH3I के साथ। तो देखो ये इसको अप्रोच करेगा, ये माइनस इसको अप्रोच करेगा कार्बन को, ये निकलेगा, तो इस CH पे एक CH3 जुड़ जाएगा, है ना बेटे, यस। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बेंजीनिंग तो है ही, एक इससे जुड़ गया, और यहाँ आ गया CH पे एक CH3 आ गया, और यहाँ आ गया COOET, ठीक है। फर्दर कह रहा है कि NaOH के साथ इसको रिएक्ट किया, फिर H+, ठीक है। तो NaOH अगेन एक बेस है, सी केयरफुली, NaOH क्या करेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेगा। और देखो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो, दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, NaOH, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो COOET, OET के पास कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, देखो NaOH, सी केयरफुली मैं पहले बता दूं, NaOH क्या है, Na+OH-, ठीक है बेटा। जब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Na
और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, क्लियर। देखो आई रिपीट अगेन, ये इस पे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा बिकॉज CO पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये फाइनली एक बार में मैं लिख दे रहा हूं, ये बन गया, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ देखो CH पे क्या जुड़ा है बेटा, एक CH3 और यहाँ पे आ जाएगा COOH। क्लियर, यस। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि ये फिर SOCl2 से रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। SOCl2 फिर AlCl3। तो देखो SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सी केयरफुली, ये SOCl2 से रिएक्ट किया तो यहाँ COCl आ जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो ये कैसे बनेगा, सी केयरफुली। देखो ये तुम्हारा है CH, यहाँ पे है CH3, ये पहले बनेगा COCl। क्या बनेगा, COCl। एंड फिर CO पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो देखो CO पे AlCl3 फिर क्या करेगा, पहले ये रिएक्शन किया किसके साथ बेटा, देखो यहाँ पे केयरफुली देखना है। जब पहला COCl2 से रिएक्शन करेगा तो COCl आएगा, जब AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो ये Cl हटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। और ये देखो यहाँ पे अटैक करेगा तो कितने रिंग की साइज बन रही है, 1 2 3 4, 4 रिंग की साइज। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला जो प्लस चार्ज है वो किस पे जाकर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ये, तो ये देखो एक बेंजीन रिंग तो रहेगा ही रहेगा, ये भी बेंजीन रिंग रहेगा। यहाँ इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी और ये जुड़ जाएगा CO किससे, इस वाले पोजीशन से, और CO से फिर CH। ठीक है, तुम ऐसे लिख लो CH और CH इससे जोड़ दो, ये बेंजीन रिंग कर दो, इस पे एक CH3 जोड़ दो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, सी केयरफुली, यहाँ CH सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 128। सी क्वेश्चन 128 कह रहा है कि CH3Cl 2 मोल जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, PHNH2 एक एनिलीन है, CH3Cl 2 मोल रिएक्ट किया, A बना, फिर इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो B बना बटर येलो कलर का। ठीक है ना, तो बताना है, ये मेजर है तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या रहा होगा, सी केयरफुली। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले PHNH2 एनिलीन है, राइट डाउन स्ट्रक्चर, ये एनिलीन है NH2, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH3Cl के साथ। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, CH3Cl, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला तो कोई है नहीं, तो ये नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, ये निकलेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा, अब देखो जब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इसके साथ अटैच होगा तो NH2 को तुम ऐसे लिख लो HH, और इस पे जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, फिर H निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में Cl माइनस गया तो HCl बना दिया, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से लिख सकते हो -H प्लस NHCH3, सेकेंडरी अमाइन बना दिया, तो ये बन गया NHCH3। फिर देखो 2 मोल बोला है ना बेटे, तो फिर CH3Cl, अभी एक देखो 1 मोल तो यहाँ खर्च हो गया, आप लोग देखो ध्यान से, 1 मोल तो यहाँ खर्च हो गया और 1 मोल फर्दर आएगा, है ना बेटे। फिर देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है ही, सिमिलर सेम रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिपीट करेगा, ये इस पे गया, ये निकला, तो एक बार में मैं H प्लस भी निकाल दे रहा हूँ एंड फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ। तो देखो इस नाइट्रोजन से 2, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़ गए, एक मिथाइल और एक और मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल तो था, एक मिथाइल और आ गया, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब इसको रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, PHN2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो देखो ये एक डाइएजो टाइप का कंपाउंड देगा। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, N2Cl, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पे तो H एक रहेगा ही, ठीक है बेटा, इस एरो को हटा दो। तो अब यहाँ से देखो HCl निकलेगा, और जब HCl निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बना देगा, कपलिंग रिएक्शन है,
इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, एनिलीन और फिनॉल देता है, ठीक है ना। फिनॉल जो है ऑरेंज कलर का देता है और एनिलीन या उसका डेरिवेटिव जो है येलो कलर का देता है, ठीक है ना। तो देखो ये बनेगा NCH3 CH3, ये तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे देखो ये N जुड़ गया, N डबल बॉन्ड N, और ये जुड़ गया बेंजीन के साथ, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे भी कुछ कर नहीं, अब कुछ नहीं कर रहा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यानी N पे देखो, इस N पे 2 CH3 और इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट N डबल बॉन्ड NPH, यानी ये बन जाएगा प्रोडक्ट C। तो 128 का करेक्ट आंसर होगा C। C in question 129, okay, p-toluidine reacts with diazonium chloride to form compound which on boiling with H2SO4 give, हमें बताना है काउंट कि कितने प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो C सोल्यूशन, हाउ डू यू प्रोसीड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ p-toluidine, ठीक है। p-toluidine का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो क्या होता है, पैरा पे एनिलीन लगा दो, CH3 है टोलुइन के, पैरा पे क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो, ठीक है। इसको रिएक्ट कराओ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, C6H5N2Cl। तो देखो बेटा C6H5N2Cl, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, N2Cl का मतलब N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगा दो Cl। अब देखो यहाँ पे जो H2 है, यहाँ से H निकाल के ऐसे निकाल लो, ये निकल गया HCl। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, सी केयरफुली, ये बनेगा, ये CH3 एज इट इज रहा होगा, यहाँ बनेगा NH, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगा दो PH, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है। एंड फाइनली ये कह रहा है कि विच ऑन बॉइलिंग विद एक्वस H2SO4, यानी H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। तो देखो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, H प्लस NOH माइनस का एडिशन, नथिंग एल्स। तो देखो बेटा ये वाला बॉन्ड अगर ऐसे जाता है, इमेजिन करो ये वाला बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो इसके लोन पेयर के साथ ये कंजुगेशन में आएगा। देखो X पे प्लस चार्ज है, Y पे लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करता है, उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है, ठीक है बेटा, ये आपको माइंड में रखना है। तो देखो जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये देखो ये CH3 तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है, ये CH3, और यहाँ पे आएगा देखो इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यस, तो यहाँ पे बन जाएगा NH2, ये तो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस क्या बनेगा, सी केयरफुली, ये PH है, PH का मतलब ये, फिर N डबल बॉन्ड N पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से, इसका लोन पेयर इसके साथ गया तो ये बन गया N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। अब इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो ये बनता है फिनॉल, यानी N2 निकलेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, फिनॉल, ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। यानी देखो ये प्रोसेस क्विकली हुआ होगा, यहाँ पे एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया होगा एंड इस हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया तुम्हारा, ठीक है, ये तो हमारा रिएक्टेंट ही हो गया, दिस वन इज रिएक्टेंट p-toluidine, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, देखो बेटा ये हो गया। अब देखो, अब जो ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड जो एडक्ट बना, इसका जो है टाउटोमर्स बना लो, क्योंकि इसका टाउटोमर्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तुम्हारा CH3 रहा, यहाँ बना NH, N डबल बॉन्ड N PH, ये प्रोडक्ट बना था। अब देखो बेटा इसका तुम बना लो टाउटोमर्स, टाउटोमेराइज होगा तो देखो क्या बनेगा, टाउटोमेराइज में अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज होता है, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज होगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे टूट गया, तो जब डीलोकलाइज होगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये देखो बेटा ये CH3 तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज,
और यहाँ पे बनेगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये बनेगा PH। फर्दर इसका कर दो तुम हाइड्रोलिसिस, तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसका लोन पेयर ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टाइप का कंपाउंड, ठीक है, और ये CH3 रहेगा और यहाँ पे N2 प्लस बन जाएगा, यानी N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और फिर NH2 माइनस, ठीक है। तो NH2 माइनस का मतलब कि ये बन गया NH2। पीएच तो रहेगा ही बेटा, पीएच मतलब ये फिनाइल, दिस पीएच मीन्स व्हाट, दिस पीएच मीन्स ये जो फिनाइल बनाया है ये फिनाइल, ठीक है। और यहाँ बनेगा NH2, तो ये एनिलीन बन गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट जाएगा NH2। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ये फिनोल बन जाएगा, यानी N2 प्लस हटेगा, ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, है ना बेटे। तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो इसके कितने प्रोडक्ट बन गए, देखो यहीं से स्टार्ट करो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ठीक है, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके, 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैं वो कर देता हूँ, देखो एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ठीक है बेटा। तो अब चेक आंसर क्या क्या दिया है, कह रहा है कि पी टॉल्यूडीन रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फॉर्म कंपाउंड विच ऑन बॉइलिंग विद एक्वस H2SO4 गिव कितने प्रोडक्ट, तो सी, यानी 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। 130 ये NO2Cl एक्वस NH3 से रिएक्शन करेगा, तो एक्वस जब NH3 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, देखो क्या बनेगा, क्योंकि पैरा पे क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है, जब एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है ना बेटे, NO2, ठीक है, और यहाँ पे Cl है, तो इस Cl के रिस्पेक्ट में ये देखो पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, -M इफेक्ट, -M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NH3 एक्वस NH3 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे Cl हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है बेटा। यहाँ देखो यहाँ पे आ गया NO2, यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब ये कह रहा है कि Br2H2O से रिएक्शन किया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखो वी नो दैट NH2 इज ए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी हर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br प्लस जनरेट कर देगा, Br अटैच करा देगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और ये प्लस M इफेक्ट होता है इसमें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इसमें, ठीक है। तो इस ऑर्थो पे और इस ऑर्थो पे, पैरा पे तो जाएगा नहीं, ऑलरेडी NO2 है, तो इस ऑर्थो और इस ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, Br ब्रोमीन, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, Br प्लस, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक Br आ जाएगा, यहाँ पे एक Br आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान देना NH2 और यहाँ पे आ जाएगा NO2, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है NaNO2 और HCl से रिएक्शन किया, तो NaNO2 HCl से रिएक्शन करेंगे तो N2 प्लस Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि NaNO2 प्लस HCl, तो NaNO2 और HCl से ये देखो NH2 किस में बनाएगा, एजोनियम क्लोराइड बना देगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगी कि यहाँ पे देखो N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे Br एज इट इज रहा होगा, ये Br एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ये NO2 भी एज इट इज रहा होगा, एंड फर्दर इसको H3PO2 के साथ हीट किया, तो H3PO2 के साथ हीट करने पे बेंजीन बनाता है, यानी N2Cl निकल जाएगा, ये N2Cl जो है रिलीज हो जाएगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बेटा ये क्या बना दिया, ये एज इट इज रहा होगा, यहाँ पे NO2, ठीक है, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ठीक है, क्लियर। तो सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, तो 130 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है बेटा।
ये माइंड में। तो देखो इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि H3PO2 के साथ जो है, इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट क्या लगा है, H3PO2 को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और जब कभी भी यहाँ नोट कर लेना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है, ये याद रख लेना, नोट कर लेना। N2+Cl- को अगर H3PO2 के साथ हीट करते हैं, H3PO2 के साथ हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग मेमोराइज कर लेना। एंड H3PO2 इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन क्वेश्चन 131 कह रहा है बेंजीन को ये फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो ए बना, ए को Br2H2O के साथ रिएक्शन किए तो बी बना 100%, ठीक है। तो देखो बेंजीन को जब फेंटन्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो बनता है फिनॉल। कैसे बनता है, पहले देखो फेंटन्स रिएजेंट होता क्या है। फेंटन्स रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ Fe+2 यानी फेरस along with H2O2, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या ये प्रोड्यूस करेगा, Fe+2 जब HOOH फेंटन्स रिएजेंट हम इसको बोलते हैं, जब Fe+2 यानी फेरस हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है Fe+3, और एक बनाएगा OH- और एक बनाएगा OH फ्री रेडिकल। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन है, ठीक है। एक OH- बनाएगा और OH फ्री रेडिकल, इसे बेटा आप लोग मेमोराइज करके रखना, ठीक है ना। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको आप लोग मेमोराइज कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसका, ठीक है। Fe+2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यानी Fe+2 यहाँ पे कैसा काम होगा, काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी खुद दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो अब आगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, सॉरी बेंजीन। बेंजीन को देखो कैसे, अब यहाँ होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिकली ये टूटेगा और ये OH सिंगल OH- नहीं, OH रेडिकल इसको अप्रोच करेगा। एक रेडिकल यहाँ आएगा, ये जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना। देखो सी केयरफुली, अब ये बनाएगा डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ एक रेडिकल रहा होगा और यहाँ पे आ गया OH। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये रहेगा ही, और यहाँ पे जो है, ठीक है। अब OH- इसको अप्रोच करेगा तो देखो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये गया H+ के फॉर्म में निकला। तो अब यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ गया, यानी तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे फ्री रेडिकल टाइप का मैकेनिज्म होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो ये इधर गया और ये रेडिकल यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब जब ये दो बॉन्ड के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है, तो ये H पे एक रेडिकल चार्ज आ जाएगा, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये फाइनली क्या बना देगा, फिनॉल। देखो बेटा ये रहा इसका मैकेनिज्म, ये बना देगा फिनॉल एंड प्लस H रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एन प्लस H2O, H+ NOH- ये बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर Fe+3 के साथ रिएक्ट करके Fe+2 बना देगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका फाइनली हमें याद रखना है कि ये बन जाएगा, ये फिनॉल है, सॉरी ये फिनॉल बना देगा, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू मेमोराइज इट कि बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद फेंटन्स रिएजेंट इट गिव्स फिनॉल। तो यहाँ पे मैं अब रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रहा बेंजीन, ठीक है बेटा। इसको आपने रिएक्ट किया किसके साथ, Fe+2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, देन इट गिव्स व्हाट, फिनॉल। अब इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, फिनॉल को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, देखो क्वेश्चन में दिया है Br2H2O के साथ, 100% प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। Br2H2O 100% का मतलब ये देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये और ये, ठीक है। तो इसका हर जगह ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तभी वो 100% प्रोडक्ट देगा, यानी ये एक्सेस में लिया गया होगा, ठीक है। इट विल टेकन इन एक्सेस, और ये क्या देगा,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया, Br+ जनरेट करेगा और हर जगह यानी जो भी इसका ऑर्थो एन पैरा पोजीशन है, बिकॉज ये कैसा इफेक्ट है, ये +m इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो एन पैरा पे ब्रोमीन जाके स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी ब्रोमीन आएगा और यहाँ भी ब्रोमीन आएगा, तो ये बन जाएगा 100% प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन डी। ठीक है, 32। ठीक है, कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने OH- के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, दिस NO2 हैविंग -m इफेक्ट। ठीक है, तो NO2 के पास -m इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। तो देखो अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इस OH और इसके बीच में, इसीलिए यहाँ से ये Br निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे OH इस पे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्यों होगा, अब यहाँ पे इसको समझो क्या क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जब ये देखो ये Br ये यहाँ पे आएगा, इमेजिन करो जब OH यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा OH और यहाँ बनेगा N डबल बॉन्ड O। इसके बीच में देखो एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, दैट इज नथिंग बट इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो ये हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड बनेगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, और एक रीजन और कह सकते हो बेटा कि हम देखो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा ये कह सकते हैं कि ये Br क्यों नहीं निकलेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये Br इसलिए नहीं निकलेगा कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप G, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये Br नहीं निकलेगा। ये Br क्यों नहीं निकलेगा, ये Br क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वही Br निकलता है जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे नोट कर लेना कि व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, ठीक है, attached at ortho and para position, attached at ortho and para position with respect to living group, with respect to living group, then nucleophilic substitution reaction takes place. Nucleophilic substitution रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये बेटा मेजर रीजन इसी के चलते होगा कि ये देखो ये इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, तो ये Br निकलेगा। ठीक है ना, ये तो एडिशनली ये भी एक पॉइंट हो गया कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बट मेन पॉइंट ये है, दिस वन इज द मेन पॉइंट। व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप G, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये Br इसलिए नहीं निकलेगा, आई रिपीट अगेन, ये Br इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इस Br के रिस्पेक्ट में ये NO2 मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 133। व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इट गिव्स ए। ठीक है, तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, NH2 एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस वन इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, यानी +m इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड सॉरी हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड ही है, एनहाइड्राइड पे ये रिएक्ट करेगा। देखो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, देखो ये इसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, फिर ये निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, सी केयरफुली, इस NH2 पे देखो NH2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो तुम ऐसे लिख लो NHH पे पॉजिटिव चार्ज और इससे जुड़ गया COCS3 एंड प्लस इसका जो बाई प्रोडक्ट बना होगा वो क्या रहा होगा, CH3CO-।
CH3 COO माइनस। अब देखो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा तो H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस देखो बेटा, ये जो H प्लस यहां से निकलेगा वो यहां जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी NHCOCH3। तो ये बेंजीन हो गया, ये बन गया NHCOCH3, ये बन गया हमारा A। और इसको हमने रिएक्शन किया किसके साथ, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा, वो कहाँ चला जाएगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये बनेगा NHCOCH3 और यहाँ चला जाएगा क्या, NO2, ठीक है। अब देखो फाइनली अब क्या कह रहा है कि फिर H प्लस NH2O के साथ रिएक्शन किया। H प्लस NH2O का मतलब फाइनली हमने किया हाइड्रोलिसिस। अब देखो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये वाला नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऐसे गया, इस पे अगेन क्या जाएगा, एक माइनस चार्ज आएगा और यहाँ से H जाके स्टिक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस से। तो यहाँ पे देखो ये बना देगा NH2 और यहाँ आएगा NO2 एंड यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी इसका साइड प्रोडक्ट बन गया एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यानी NH2 और NO2 अपोजिट साइड में है, ठीक है, NH2 और NO2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 134। सी इन क्वेश्चन 134 व्हेन NO2 ट्रीटेड विद Br2 2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ये Br प्लस जनरेट करेगा, ठीक है, Br प्लस जनरेट करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो ये देखो 2 मोल दिया है, FeBr2 के साथ Br प्लस जनरेट करेगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इट्स ए माइनस एम इफेक्ट। इसके पास क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। तो माइनस एम इफेक्ट के चलते कहाँ पे जाएगा, देखो माइनस एम इफेक्ट के चलते पहले तो मेटा पे जाएगा। तो बहुत बच्चे सोचेंगे 2 मोल दिया है सर, तो देखो इसमें रॉन्ग प्रोसेस क्या है मैं बताऊं। सबसे पहले क्या है कि ये रहा आपका NH2 NO2 के पास कैसा इफेक्ट होता है, तो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बच्चा बोलेगा सर मेटा ये है और मेटा ये, दोनों जगह चला जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो इसमें रॉन्ग प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट दोनों बनाऊंगा मैं। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, इनका कॉम्बिनेशन Br प्लस जनरेट करेगा, ठीक है, और ये कह रहा है कि 2 मोल है, ठीक है। तो देखो बच्चा बोलेगा कि साइमल्टेनियसली जो है यहाँ NO2 1 मोल यहाँ Br जाएगा और 1 मोल यहाँ Br जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज रॉन्ग प्रोडक्ट, ठीक है, ये गलती मत करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके रिएक्शन होता है, ठीक है ना बेटा। तो पहले Br आएगा, फिर Br2 के साथ अटैक करेगा, फिर Br आएगा। अब देखो क्यों क्या, तब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे NO2 कर लो, Br2 Fe से रिएक्शन करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो पहले NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा Br, ठीक है बेटा। अब देखो फर्दर तुम Br2 और Fe से रिएक्ट कराओगे तो सी केयरफुली, दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस वन इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है और दिस वन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, तो माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम, और ये कैसा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। तो यहाँ पे नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो कि NO2 जो होता है, NO2 ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, और Br क्या होता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग या पुअर डीएक्टिवेटिंग बोल सकते हैं, एक्टिवेटिंग, ठीक है बेटा। ये होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग या पुअर एक्टिवेटिंग बोल सकते हो, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग या पुअर दोनों की कैटेगरी में आ सकता है। तो अब देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसके पास प्लस एम इफेक्ट है। ये देखो ये डीएक्टिवेटिंग स्ट्रांगली, ये हम बोल सकते हैं मॉडरेटली या पुअर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसके रिस्पेक्ट में या तो Br यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा या यहाँ, दोनों जगह जा सकता है। तो देखो हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, बट इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे भी जा सकता है एज वेल एज कहाँ पे जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है। तो देखो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे,
ये NO2 तो रहेगा ही, एक देखो एक Br यहाँ पे है और एक Br यहाँ चला जाएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस इस Br के रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे NO2, यहाँ पे एक Br लगा दो और यहाँ पे एक Br लगा दो, ये हमारा दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो NO2 के रिस्पेक्ट में ये देखो ये B तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो सकता है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इन क्वेश्चन 135 कह रहा है इथाइल बेंजीन का हमने नाइट्रेशन किया तो ये कह रहा है डाई नाइट्रो प्रोडक्ट बना। ठीक है, फिर कह रहा है कि KMnO4 के साथ उसको हमने हीट किया तो B बना, B को SOCl2 से रिएक्ट किया तो C बना, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई C प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप बनाओ बेटा इथाइल बेंजीन, ये आपका हो गया इथाइल बेंजीन, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और हमें डाई नाइट्रो प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, डाई नाइट्रो प्रोडक्ट। तो देखो ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, तो बोलेंगे ये एक्टिवेटिंग भी है एज वेल एज जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो यहाँ पे आएगा ये तो यहाँ पे आएगा, बट डाई नाइट्रो बनाना है तो एक यहाँ पे कर देंगे, एक यहाँ पे, दोनों यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस आ जाएगा। जब दोनों दोनों NO2 को यहाँ पे कर देंगे तो ये स्टेरिक हिंडेंस आ जाएगा, स्टेरिक हिंडेंस के चलते बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा एंड अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये देखो इथाइल बेंजीन है, तो एक NO2 को तुम यहाँ पे कर दो और एक NO2 को यहाँ पे लगा दो, क्योंकि उसने बोला है डाई नाइट्रो। ठीक है, क्वेश्चन में देखो उसने बोला है डाई नाइट्रो प्रोडक्ट। फिर KMnO4 के साथ हमने हीट करना है, तो देखो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो इस CH2 का CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये चला जाएगा एसिड में। ठीक है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, और देखो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है एज इट इज रहा होगा, यहाँ पे भी जो NO2 ग्रुप है एज इट इज रहा होगा। ठीक है, फर्दर इसको हमने रिएक्शन कराया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो COH की जगह पे क्या आ जाएगा, COCl आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा COCl, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे रहा होगा और एक NO2 ग्रुप यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। Then C in which option it is given? It is given in option B. तो 135 करेक्ट आंसर होगा B। इन क्वेश्चन 136 कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने रिएक्शन कराया CH3NH के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होगी, देखो इस Cl के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस Cl this NO2 group attached at para position, therefore यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखो इसका यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सी केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो आप Cl, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हमने रिएक्ट कराया डाइमिथाइल अमाइन के साथ CH3NH तो ये निकलेगा बेटा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, को यहाँ पे आएगा NCH3CH3। यहाँ से तुम ऐसे भी बोल सकते हो HCl निकल गया, यहाँ से H पहले जब ये इस पे अटैक करेगा Cl निकलेगा तो NH प्लस आएगा। चलो मैं इंटरमीडिएट भी बना के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर जो है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये H आएगा और यहाँ पे आएगा NO2, फिर फाइनली H प्लस यहाँ से निकलेगा एंड इट गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे NO2 एज इट इज रहा होगा, देखो NCH3CH3। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब आगे कह रहा है कि इसको FeHCl के साथ रिड्यूस कर रहे हैं, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट्स ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो NO2 को किस में रिड्यूस करेगा, NH2 में करेगा। ठीक है, तो बस हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो देखो ये बेटा एज इट इज रहा होगा NCH3CH3 एंड दिस NO2 reduces into NH2। ठीक है, तो देखो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। 137 कह रहा है कि एक कंपाउंड को SOCl2 और NH3 के साथ रिएक्ट किया गया तो B बना,
बी को हमने Br2 और KOH के साथ रिएक्ट किया तो C बना, ठीक है, ये कंपाउंड बना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स रिएक्टेंट ए, तो हमें बताना है बेटा कि कौन से कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिएक्टेंट ए बनेगा। तो देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखो OH आ रहा है और यहाँ पे NH2 आ रहा है, और Br2KOH का मतलब यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहा होगा, यानी यहाँ पे CONH2 रहा होगा तभी Br2 और KOH के साथ जो है NH2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाय ऑप्शन हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखो पहला क्या है कि OH और NH2 एडजेसेंट पोजीशन पे, थोड़ा सा गेस करो, यहाँ पे देखो OH और NH2 क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो OH यहाँ पे देखो ऐसा, COD में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो COD तो पहले हटा दो, क्योंकि अब देखो OH एडजेसेंट पोजीशन पे है, OH यहाँ पे भी एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो A और B में हो सकता है। तो अब क्या करो कि A का तुम हाइड्रोलिसिस कर लो, इससे आइडिया निकल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब A का हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, सी केयरफुली, तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो बन जाएगा ये बनेगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल ये बनेगा, और यहाँ पे बनेगा COH आ जाएगा और NO2 आ जाएगा, ठीक है। और COH को जब हम SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो COCl बनेगा, फिर NH3 के साथ CO, चलो मैं लिख के दिखा रहा हूँ बेटा, पहले हम A को लेके प्रोसीड करेंगे। देखो बेटा COD तो नहीं हो सकता, क्यों, OH और NH2 एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसमें कहीं भी OH और NH2 एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखो OH और इसमें मतलब 1 2 3 एडजेसेंट टू एडजेसेंट पोजीशन पे, इसलिए हमने इसको नलिफाइड कर दिया। अब देखो ए ऑप्शन को लेके अगर आप प्रोसीड करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स ए इजी क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे बेटा NO2 लगाया हुआ है और यहाँ पे आप कर दो COO और यहाँ पे लगा दो आप बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ OH लगा दो, ठीक है। अब इसका करो तुम क्या, हाइड्रोलिसिस, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो एक तो प्रोडक्ट आपका बन गया, यहाँ पे COH आ गया और यहाँ पे बन गया NO2, और एक प्रोडक्ट बन गया OH एडजेसेंट पोजीशन पे आएगा। देखो OH और OH एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर। तो ये बन गया OH। अब देखो फर्दर इसको अगर SOCl2 से बेटा रिएक्शन कराते हो तो देखो COCl बनेगा, ये देखो थायोनिल क्लोराइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो असाइल क्लोराइड बनाता है, तो ये बन जाएगा, यहाँ देखो NO2 है और यहाँ बनेगा COCl, है ना बेटे। और फर्दर इसको आप रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, NH3 के साथ, NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो अमाइड बना देगा ये, यहाँ लिखो CONH2 और ये बन गया NO2 एज इट इज रहा होगा, ठीक है। एंड फाइनली, ठीक है, एंड फाइनली इसको रिएक्शन हमें कराना है Br2 एंड KOH के साथ, तो Br2 KOH के साथ CONH2 किसमें चला जाएगा, अमाइड है ये, तो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन लग जाएगा, यहाँ पे NH2 एक कार्बन का लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ बनेगा NH2 और यहाँ आएगा NO2। अब देखो प्रोडक्ट में ऐसा बना रहा है क्या, OH और NH2 आ रहा है, तो इसका मतलब A तो नहीं हो सकता ना, ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को लेके प्रोसीड करो, बी भी ऐसा सिमिलर है तो बी से बन सकता है। अब देखो ऑप्शन बी को लेके प्रोसीड करो, अब इसका बेटा पहले आपको करना है हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे OH लगा है, COO यहाँ पे लगा दो NO2। अब इसका करो बेटा हाइड्रोलिसिस, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे OH आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी OH आ जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, देखो बेटा यहाँ देखो एक OH आ गया और यहाँ पे COH आ गया, इज इट ऑल राइट। एंड इसका एक साइड प्रोडक्ट और बनेगा, जो क्या बनेगा, यहाँ देखो OH और यहाँ देखो NO2, ठीक है। अब देखो ये बन गया। अब फर्दर इसको SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड तो SOCl2 से रिएक्शन नहीं करेगा, ये कंपाउंड करेगा, तो देखो ये बना देगा क्या, सी केयरफुली, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये OH एज इट इज रहा होगा, यहाँ बन जाएगा COCl। फिर इसको हमने NH3 से रिएक्शन कराया,
जब NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CuNH2 बनेगा, अमाइड। इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पे करा दो Br2NKOH के साथ, तो Br2NKOH के साथ जो अमाइड है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो देखो ये सेम बना दिया, ठीक है बेटा, NH2 and OH। तो देखो ये प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सी केयरफुली, NH2 and OH एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी बी का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड ए बनेगा, जो फर्दर इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इफ वी पास थ्रू दिस प्रोसेस देन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेट्स डू क्वेश्चन 138। अगर इस कंपाउंड को HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसका कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा NO2 प्लस OMe, दिस OMe हैविंग प्लस M इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है, प्लस M इफेक्ट। तो कह रहा है प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्लस M इफेक्ट का मतलब क्या करेगा ये, या तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आएगा, पैरा पे जा नहीं सकता क्योंकि पैरा इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। देखो पैरा इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो यहां पे जा नहीं सकता, तो या तो देखो इस पोजीशन पे जाएगा, सी केयरफुली, या तो इस पोजीशन पे जाएगा NO2 या तो इस पोजीशन पे जाएगा, तो कहीं भी लगा दो, यहां नहीं लग सकता, तो ये देखो NO2 यहां पे लगाया है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग NO2, अब देखो ये दोनों बेंजीन बना दिया जबकि एक साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इस NO2 पोजीशन कहां पे जाएगा, जो NO2 प्लस है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, ठीक है। बिकॉज प्लस M जो होता है, प्लस M कैसा होता है, ओपी डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, नहीं तो पैरा पे जाएगा। तो देखो यहां पे ऑर्थो है तो NO2 प्लस ऑर्थो पे जाएगा, तो बस हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये सी, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 139, ठीक है। When this compound treated with Br2 in CS2, then product of the reaction is what? So see carefully, this one is activating group, this one is also activating, but NHCO-CS3 is highly activating with respect to Me. And if we compare with Me and NHCO-CS3, NHCO-CS3 having more activating nature than methyl group, ठीक है। Then electrophile, that is to say Br plus, goes with respect to this NHCO-CS3 because NHCO-CS3 का एक्टिवेटिंग नेचर मिथाइल से ज्यादा होता है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो Br को कहाँ पे अटैक कराओगे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। आई रिपीट अगेन, यहां लिख लेना एक्टिवेटिंग नेचर, यहीं पे नोट कर लो। एक्टिवेटिंग नेचर का मतलब प्लस M इफेक्ट, प्लस M पावर। NHCO-CS3 इज मोर देन Me, ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। देन एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, पहला रूल होता है। सेकंड रूल होता है if two activating group present on the benzene nucleus, then electrophile goes with respect to the those activating group which having more activating nature। more activating nature का मतलब more plus M power, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि प्लस M पावर जो है NHCO-CS3 का मिथाइल से ज्यादा होता है, यानी एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, हम ये बोल सकते हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, यानी विद मिथाइल, ठीक है ना। अगर मिथाइल से हम कंपेयर करें, NHCO-CS3 इज मोर पावरफुल देन मिथाइल, तो यहाँ पे नोट कर लेना। 140 when this compound treated with H2PD, तो देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा। H2PD एक रिड्यूसिंग एजेंट है which having tendency to reduces NO2 group, तो देखो ये OH तो एज इट इज रहा होगा, ये NO2 है, इसको हमने किसे रिएक्शन कराया है, H2PD के साथ। तो देखो ये जो NO2 ग्रुप है रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, NH2 ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। OH तो रिड्यूस होगा नहीं, ये एज इट इज रहा होगा, और ये चला जाएगा किस में, NH2 में, ठीक है। फिर फाइनली कह रहा है कि ये COOC मतलब ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, CS3
COOCOCS3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो देखो ये कैसे रिएक्शन अप्रोच करेगा, ये इस पे गया, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे आएगा, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वैसे भी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन पे पहले जाएगा, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहा होगा, ये बनेगा देखो NHCOCS, एक बार में प्रोडक्ट बना दिया। देखो यहाँ NH2 पे प्लस चार्ज आएगा, फिर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, इसका बाई प्रोडक्ट CS3COOH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो कह रहा है B जो है एक पैरासीटामोल है, तो B क्या रहा होगा, तो ये देखो एक पैरासीटामोल है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो OH NHCOCS3, तो OH NHCOCS3 इसका करेक्ट आंसर होगा B, ठीक है। याद कर लेना नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ नोट कर लेना। ये नाइट्रोजन पे क्यों गया, ऑक्सीजन पे क्यों गया, क्यों नहीं गया, तो लिखेंगे N, नाइट्रोजन नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, simply you have to keep in mind. Let's do question 141. How to proceed question 141. ये कह रहा है कि ये बेंजीन है, बेंजीन को सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया गया AlCl3, और AlCl3 कितना है 2.2 इक्विवेलेंट। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, AlCl3 एक्चुअल में क्या है, एक लेविस एसिड है जिसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके जो है फिर अपने फॉर्म में वापस आ जाएगा, तो इसका 2.2 इक्विवेलेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी प्रोसीड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द बेंजीन, ठीक है, and AlCl3 we know that AlCl3 is a Lewis acid and all the Lewis acid having tendency to produce an electrophile। तो देखो बेटा सबसे पहले चलो मैं इसका मैकेनिज्म पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा, तो इससे आप लोग को आसानी होगी समझने में। अब देखो AlCl3 एक Lewis acid है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे ज्यादा है, दो लोन पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि ये अटैक कहां करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर सकता। वाई, इस ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो है बेटे डीलोकलाइज होगा, ठीक है। तो देखो हम इस पे अटैक नहीं कराएंगे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज होगा नहीं, इस पे जो लोन पेयर है, सी केयरफुली, इस पे जो लोन पेयर वो तो डीलोकलाइज नहीं होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी, तो ये यहाँ पे नहीं अटैक करेगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो AlCl3 कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहीं पे मैं एक बार इंटरमीडिएट बना दे रहा हूँ। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, यहाँ डबल बॉन्ड ओ रहेगा, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ, और ये AlCl3 से जुड़ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर इसको दे रहा है, ये देखो ये लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा, जब बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड एज इट इज जुड़ा होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस, और ये पॉजिटिव चार्ज, अब देखो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हुआ, सी केयरफुली, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज बेटे ले जाके इस पे जाके अटैक कर देगा, इस वाले निगेटिव पे। तो देखो जब इस पे अटैक करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला देखो यहाँ एज इट इज, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये बॉन्ड एज इट इज रहा, और ये सी बॉन्ड जो है इससे जुड़ेगा, ये कार्बन जो है इससे जुड़ जाएगा, तो देखो इस कार्बन को हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है, और इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन कनेक्टेड है, तो एक कार्बन दो कार्बन और तीसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप है, ध्यान देना बेटा कुछ है नहीं इसमें, और इससे O जुड़ा है, और AlCl3 पे कौन सा चार्ज डेवलप है, माइनस चार्ज, ये एज इट इज रहा होगा, और ये जो है एक ऑक्सीजन से दोनों जुड़े हुए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखो AlCl3 is a Lewis acid and all the Lewis acid having tendency to produce carbocation,
and at the end of the reaction it comes out into in its own form. It means what, ये अपने फॉर्म में वापस आएगा. yes. अब देखो अब कहानी कैसे स्टार्ट होगी, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा. तो देखो बेटे जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सी केयरफुली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज. अब देखो ये कार्बन से जुड़ा है, सी केयरफुली, इस कार्बन, ये वाला बॉन्ड जब यहां जाएगा तो इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हुआ जाएगा. अब ये देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, CH2 दो कार्बन, तो यहां पे लिखोगे तुम CH2. अब देखो इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो CO एंड O पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस, तो CO माइनस बनेगा. ठीक है. अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो ये हाइड्रोजन बेटा ऐसा रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा और ये H प्लस जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा. इज इट ऑल राइट. तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कंप्लीट बेंजीन रिंग बन गया. ठीक है. एरोमेटिसिटी अपनी गेन कर लिया. अब देखो यहाँ पे क्या है, CO, ध्यान देना, अब लाइन नोटेशन में कर देता हूँ, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, फिर यहाँ CO और यहाँ पे आ जाएगा OH. ठीक है. ये हमारा बन गया प्रोडक्ट. अब आगे कह रहा है कि इसको हमें किससे रिएक्ट करना है, ZnHgNHCl. ZnHgHCl इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन. ये क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन CO को CH2 में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो ये जो है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखो ये बेटा बेंजीन रिंग एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, है ना. यहाँ देखो CH2 आ गया, CH2, फिर ये एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, COOH. अब देखो इसको H3PO4 के साथ हमने हीट किया. H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, H प्लस ये फर्निश करेगा और H प्लस क्या करेगा, ये OH पे जाकर अटैक करेगा, ये निकलेगा, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और ये जाके इस पे अटैक कर जाएगा. आई थिंक ये बिल्कुल पहले जैसा है. ठीक है ना. अगर मान लो तुम, तो इट इज गिवन इन ऑप्शन बी. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. ठीक है बेटा. ओके. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 142. बेंजीन को हमने इसे रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, 82% यील्ड हो रहा है. तो प्रोडक्ट ऑफ द अबव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज व्हाट. अब देखो बेटा सबसे पहले, अब ये देखो AlCl3 एक लिविस एसिड है, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी. तो देखो इस ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे देखो दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे भी दो लोन पेयर्स हैं, बट इस पे इसलिए नहीं जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं. देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसीलिए AlCl3 यहां ना जाके कहां जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा. ठीक है. अब चलो मैं सबको इरेज करके मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे होगा. ठीक है. अब देखो AlCl3 पहले इस पे जाके अटैक किया. ठीक है. तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, पहले इसका इंटरमीडिएट आप लोग बनाओ. देखो सी केयरफुली, ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ C डबल बॉन्ड O AlCl3, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, और ये बनेगा OH. ये एज इट इज रहा होगा. अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, फिर ये वाला बॉन्ड इसके पीछे जाएगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है. ठीक है. तो इसका जो स्ट्रक्चर बना होगा वो देखो ऐसे बना होगा. पहले मैं एक को ब्रेक कर लेता हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा. यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ देखो माइनस और प्लस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन, और इस पे आ गया O AlCl3, और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज. ये एज इट इज रहा होगा, और ये OH एज इट इज रहा है. अब देखो ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बेंजीन के न्यूक्लियस पे जाके, जो हमारा रिएक्टेंट है. पूरा देखो मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा. यस. अब ये प्लस जो है बेटा जाके इस पे अटैक कर देगा माइनस पे, और जब अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा. सी केयरफुली. तो देखो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड बन गए, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ होगा. ठीक है. ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये वाला इससे जाके जुड़ गया, और इससे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. ठीक है. फिर ये देखो एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C है. ठीक है. और C पे है O, फिर O किससे जुड़ा हुआ है, AlCl3, और इस पे है माइनस चार्ज, और इससे जुड़ा है OH. सी केयरफुली, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अब देखो कैसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया. ठीक है. क्योंकि AlCl3 अपने फॉर्म में फिर फर्दर वापस आएगा. AlCl3 एक लिविस एसिड है,
फिर क्या करेगा, अपने फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेगा। जब वापस आएगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पॉजिटिव एज इट इज रखो अभी, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जो बना था, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, ये दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, यहाँ देखो एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, सी केयरफुली, यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। जब माइनस चार्ज डेवलप होगा तो देखो क्या बनेगा, ये देखो, ये जब बॉन्ड यहाँ पे गया तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ OH, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब देखो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। जब ये वाला हाइड्रोजन बेटा निकलेगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता तो एक बार में कर देता, फिर समझ में नहीं आता, ठीक है ना। जो एवरेज बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ, सी केयरफुली। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके स्टिक हो जाएगा और ये बना देगा COOH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो देखो अब आगे की कहानी क्या है, कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या रहा होगा। अब इसके बाद तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बेंजीन, यहाँ पे 2 CH3 है, फिर ये CH2 COOH, ठीक है। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, it is given in option C. Question 143, which of the following 2-halo-nitrobenzene is most reactive towards nucleophilic aromatic substitution reaction? So first of all you have to keep in mind, when nucleophilic aromatic substitution reaction takes place, when any electron withdrawing group attached at ortho and para position, then न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2-halo-nitrobenzene इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो मोस्ट रिएक्टिव के लिए सबसे पहले ये बताओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका ज्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, देन होता है क्लोरीन का, देन होता है ब्रोमीन का, देन होता है आयोडीन का। ये होता है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, तो मेटअप पे ज्यादा होगी, क्योंकि ये माइनस एम इफेक्ट रखता है। NO2 के पास माइनस एम इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, मेटा पे, यानी इस पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और इस पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली का पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो F जितना माइनस आई पावर ज्यादा होगा उतने ही निकलने का रेट ज्यादा होगा। F की क्या टेंडेंसी है, F की टेंडेंसी है माइनस आई करने की, F की टेंडेंसी क्या है, माइनस आई करने की। तो जब माइनस आई करेगा तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा, ऑब्वियस है कि फ्लोरीन की जो माइनस आई पावर है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, तो F आसानी से निकलेगा। और F इसलिए भी आसानी से निकलेगा कि ड्यू टू NO2 ग्रुप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो कि फ्लोरीन को आसानी से निकलने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखना कि वही फ्लोरीन आसानी से निकलेगा जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। Is it all right? Okay. See, in question 144, choose the best method to prepare given compound. इस compound को बनाना है तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा। तो देखो ये जो ग्रुप है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो NO2 ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये माइनस एम इफेक्ट रखता है। माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। तो अब जरा सोचो, अगर तुम पहले NO2 ग्रुप ला दोगे और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो ये मेटा पे जाना चाहिए, बट ये कहां पे जा रहा है, पैरा पे जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए पहले हमें ये ग्रुप लाना पड़ेगा। पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप लाना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा कि ये ग्रुप लेते आओ, और ये कैसा ग्रुप है, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ जाएगा, पहले ये ग्रुप ला दो, फिर नाइट्रेशन करा दोगे तो पैरा पे चला जाएगा नाइट्रो। तो देखो क्या पहला ऑप्शन से हो सकता है, देखो पहले इसमें नाइट्रेशन कराया है। अगर सोचो कि नाइट्रेशन NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो फिर अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो कहां जाएगा, वो जाएगा मेटा पोजीशन पे, बट ये तो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता,
ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन को देखो, पहले इसने क्या किया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दिया, फिर नाइट्रेशन, तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि ये बेंजीन है, ठीक है बेटा, सी केयरफुली, बेंजीन है, बेंजीन को तुम रिएक्ट करा दो Me3CCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 एक लिविस एसिड है, लिविस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो देखो इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ कैसे ये प्रोसीड हुआ होगा। ये है Me3Cl, ठीक है, जब ये AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, और ये AlCl4 माइनस प्लस CH3CCH3CH3 प्लस, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा, और ये कार्बोकेटाइन जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा, और ये क्या बना देगा, बेंजीन पे आ जाएगा CCH3 टर्सरी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और फर्दर इसका करा दो नाइट्रेशन, ये ओपी डायरेक्टिंग है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन NO2 प्लस जनरेट करेगा, और NO2 प्लस कहां चला जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ऑर्थो पे अगर जाएगा तो माइनर होगा क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, हिंड्रेंस लगेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते हमें, और हमें ऑर्थो पे ले भी नहीं जाना क्योंकि हमें क्या बनाना है, पैरा बनाना है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, तो उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, Cl यहां से निकलेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर यहां से हम शिफ्टिंग कराएंगे, देखो सी केयरफुली, फिर हम शिफ्टिंग कराएंगे तो इससे भी बन सकता है, ठीक है, इससे भी बन सकता है, क्योंकि AlCl3 पहले ये Cl यहां से निकलेगा, यहां CH2 प्लस आएगा, फिर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यहां पे प्लस आएगा, फिर इसके, तो इससे भी बन सकता है, ठीक है। डी तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले नाइट्रेशन करा दिया, तो बी से भी बन सकता है और सी से भी बन सकता है, ठीक है, इससे भी बन सकता है, बट आसानी से इससे बनेगा, बी से आसानी से बन जाएगा, ठीक है, इसे बेटा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें भी शिफ्टिंग करा के बन सकता है बट आसानी से इसमें बनेगा, इसने बेस्ट मेथड बोला है ना, देखो बेटा चूज द बेस्ट मेथड, ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है और सी से भी बन सकता है, बट बेस्ट मेथड क्या होगा, बी होगा, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन 145, ठीक है। कह रहा है कि टॉल्यूइन को HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्ट किया गया। देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये सबसे पहले बेटा आप टॉल्यूइन ले लो, ठीक है, ये हमारा टॉल्यूइन है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, NO2 प्लस, और ये कह रहा है कि पैरा आइसोमर्स, तो पैरा ही हमें बनाना है, CH3 यहाँ पे गया और NO2 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 यहाँ गया, फिर कह रहा है कि इसको H2PD के साथ रिएक्ट किया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, बिकॉज H2PD रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट करेगा, सी केयरफुली, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो बेटा CH3 एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसको KMnO4 से हमने रिएक्ट कर दिया, तो KMnO4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज दिस टॉल्यूइन इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बेंजोइक एसिड टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, यानी CH3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में, ये NH2 तो रहेगा, इट विल नॉट चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COOH। फर्दर कह रहा है कि इसको ETOH से रिएक्शन कराया गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, OH कम्स फ्रॉम एसिड, NH कम्स फ्रॉम अल्कोहल, इट्स ए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, H अल्कोहल से आता है और OH कहाँ से आता है, एसिड से, तो ये बना देगा एस्टर। एस्टर कैसे बनाएगा, तो देखो ये हमारा एस्टर बनेगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो NH2 रहा होगा और ये बन जाएगा COOET, ये बन गया, और फर्दर कह रहा है कि इसको डी बनेगा, यही हमारा डी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा डी प्रोडक्ट है, इसको बेंजोकाइन बोलते हैं, ठीक है ना, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। कह रहा है कि बेंजोकेन has been used as a component of appetite suppressants, ठीक है, इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बेंजोकेन जो है यूज किया जाता है कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट बर्न एंड सनबर्न रेमेडीज, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड बना होगा, तो देखो कौन सा कंपाउंड है ये, सी केयरफुली, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, डी, तो ये दिया है किसमें, ऑप्शन बी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, तो 145 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। सी इन क्वेश्चन 146 कह रहा है व्हेन दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद HBr फॉलोड बाय हीट
तो ए बनेगा 86%। देखो HBr एक H प्लस फर्निश करेगा, पहले H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, तो ये H2O प्लस बनेगा। ये अगर निकलेगा तो बेंजीन पे प्लस चार्ज आएगा जो हाईली अनस्टेबल है, तो ऑब्वियस है ये H प्लस यहाँ पे तो जाएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो H प्लस के पास एक ही पोजीशन है यहाँ जाने की, तो यहीं पे जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये आपका है बेटा OCH3 ग्रुप है, ये बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे क्या है OH है। अब देखो इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। HBr के साथ अगर हम हीट करेंगे तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस, सीधे आप एडक्ट बना दो, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नॉट एडक्ट, सॉरी। O पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, यहाँ पे H जाके स्टिक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सी केयरफुली, ये तो बेंजीन रिंग रहेगा ही, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और ये बना देगा साइड प्रोडक्ट, इसका होगा CH3 पे प्लस Br माइनस यानी CH3Br, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन सी। ठीक है, तो 146 का करेक्ट आंसर होगा सी। लेट्स डू क्वेश्चन 147। क्वेश्चन 147 कह रहा है कि दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद HI तो देखो HI से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, OCH3, यहाँ पे क्या है OCH3, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है OCH3, और HI बेटा एक्सेस में रिएक्ट कराया गया। HI हमने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, क्योंकि बेंजीन वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि बेंजीन पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, सी केयरफुली, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि हमने ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया है। अब देखो इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा सिंपली। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बेंजीन रिंग रहेगा ही, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे भी OH आएगा एंड यहाँ पे भी OH आएगा, और इसका जो साइड प्रोडक्ट बना होगा CH3 प्लस 3 और ये आई 3CH3I, मिथाइल आयोडाइड इसका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सी केयरफुल, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो 147 का करेक्ट आंसर होगा ए। लेट्स डू क्वेश्चन 148। व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो कह रहा है ए जो है मेजर क्या रहा होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका हम सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि HNO2 को हम ऐसे लिखेंगे HON डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब देखो HNO3 पावरफुल एसिड HNO2 से, तो पहले H प्लस कौन फर्निश करेगा, तो बोलेंगे HNO3 जो है H प्लस फर्निश करेगा, ठीक है। और H प्लस कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये जाके इस पे अटैक कर देगा और ये बना देगा क्या OH2, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये बना देगा N डबल बॉन्ड। H2O गुड लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, और ये देखो N डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन एक प्रोड्यूस कर देगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। OH कौन सा ग्रुप है बेटा, फिनोल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। सी केयरफुली, इसके पास कौन सा इफेक्ट है, हम बोलेंगे इसके पास प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो जब NO प्लस इस पे जाके अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, पैरा पे, पैरा वाला मेजर बनेगा, है ना। अब देखो सिस्टम में तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखो NO फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है कि नहीं, बोलेंगे यस हो सकता है। NO ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, NO2 में। HNO3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो, ठीक है। तो ये इसने बोला है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही बट ये मेजर नहीं होगा, क्योंकि HNO3 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेज NO2 NO2 यानी NO2, इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, तो ये हो जाएगा सी। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा सी। ये भी बन सकता है बट ये माइनर होगा, इट्स नॉट ए मेजर, ठीक है, ये माइनर होगा एंड इट विल बी मेजर बिकॉज HNO3 is a oxidizing agent, good oxidizing agent, and it having tendency to oxidizes this NO, and NO oxidizes into NO2. That's it. Let's do question 149. ठीक है, 9 अरेंज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव डजंट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इन सम केसेस इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो। पहला मैंने क्या बताया था, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो इसमें
Cl के रिस्पेक्ट में NO2 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 तीन NO2 ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है बेटा, ये देखो, ये पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो सबसे पहले Cl यहाँ पे निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सबसे ज्यादा रेट इस फिफ्थ वाले में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो तीन NO2 ग्रुप, तीन -M इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच हैं, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फिफ्थ। फिर देखो इसमें दो हैं बेटे, है ना, यहाँ पे देखो दो हैं, तो इसके बाद फास्ट कौन देगा, तो इसके बाद फास्ट देगा 3, 5 के बाद आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। अब 3 के बाद देखो इसमें NO2 ये कहाँ पे है, मेटा पे है, तो ये तो देगा नहीं, ये पैरा पे है। मैंने बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कब देगा, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। NO2 कहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, देखो ये पैरा पोजीशन है, इस Cl के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे आसानी से निकलेगा। तो इसके बाद ऑर्डर हो जाएगा 1, उसके बाद देखो NO2 तो इससे कनेक्टेड है ही, तो उसके बाद ऑर्डर हो जाएगा 2 का, देन ऑर्डर होगा ये 4 का। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा उतना ही रेट फास्ट होगा, ये आपको माइंड में रखना है कि जितना ज्यादा NO2 ग्रुप रहेगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट देगा 5, देन 3, ठीक है, देन 1, देन 2, देन 4, तो इट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ये बेटा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और कौन कौन से केस होते हैं जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो पहला मैंने बताया इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दूसरा होता है व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, then nucleophilic substitution reaction takes place, and थर्ड होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तीन केसेज होते हैं जहां पे बेंजीन या उसका डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो ये बेटा माइंड में रखना, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन 150, ठीक है, सी केयरफुली। 150, ठीक है, which one of the following compound undergo bromination of its aromatic ring electrophilic aromatic substitution at the fastest rate। तो देखो जब बेंजीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्टेड होगा +M इफेक्ट वाले, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देता है। तो देखो ये बेंजीन से डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं है, इसमें भी कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं देगा, ठीक है, फास्ट नहीं देगा, देगा लेकिन फास्ट नहीं देगा, ठीक है बेटा, इसको हम हटा देते हैं। ये देखो डायरेक्टली ये जो N जो कनेक्टेड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखो N क्या है, NH पे N पे एक लोन पेयर है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं +M इफेक्ट, ठीक है, ये +M इफेक्ट दिखाएगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा होती है, तो इसके कारण जो ब्रोमिनेशन हम कराएंगे यानी Br+ अटैक होगा तो कहां जाएगा, या तो इस पोजीशन पे जाएगा या तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट पोजीशन पे जाएगा, तो इसमें फास्ट रेट से होगा। ये इसमें देखो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसमें भी होगा बट फास्ट नहीं होगा, बिकॉज ये कौन सा इफेक्ट है, ये जो है -M इफेक्ट है बेटा। -M इफेक्ट का मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो Br+ है यहाँ पे आसानी से नहीं जाएगा, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। This NH group having tendency to increase electron density at this benzene nucleus. Therefore, electron on the benzene nucleus increases, तो Br+ जो है आसानी से बेटा जाके इस पे अटैक कर सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या तो यहाँ पे जाएगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे जाएगा, तो सबसे फास्ट रेट किस में होगा, बी में होगा। इसमें भी देखो NH तो है एक्टिवेटिंग, बट ये डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, एक कार्बन छोड़ के कनेक्टेड है, ठीक है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नेक्स्ट।